नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौजायानं नमो लोये सौत्रिकालवती सावनं ओंकारबिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमो मंगलम कुंकुंडार्यो विजेन्द्र मोसुमंगलम नमः समरिसादाय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभाव निदाता। આત્મા અનાદિ અનંત વસ્તુ છે અને ઉપયોગ તેનું લક્ષણ છે અને તે પણ અનાદિ અનંત છે, જે શુદ્ધ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય છે. એમાં પહેલું પણ લઈશું ને, મારું કારણ તો મારામાં જ છે. બોલો, તમે મોક્ષ ક્યાં શોધો છો? બહાર. આ સહજ મુક્ત ભગવાનના દર્શન કરવા હોય તો ઉપયોગ લક્ષણના દ્વાર ખોલી નાખો. ઉપયોગ લક્ષણના દ્વાર ખોલશો તો સહજ મુક્ત ભગવાનના સીધા દર્શન. હવે આ ઉપયોગ લક્ષણ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના વિષયમાં લીધો તો ઉત્પાદય આવી ગયા કે નહીં? લક્ષણ કહેતો ઉત્પાદય છોડ્યા, એનો ભેદ કર્યો એમ બી નહીં. ખાલી જુઓ એક ઉપયોગ લક્ષણમાં કેટલા ભાવ છે. એના માટે મારું કારણ મારામાં જ છે, પરંતુ મને એનું ભાન નહોતું અને મેં તેનું અવલંબન લીધું નહોતું. અવલંબન લેવા લાયક એક જ નજીકનું મોક્ષ માટે કયું કારણ છે? નજીકમાં નજીક તો આ કારણ શુદ્ધ કર્યા. જે કેવલ જ્ઞાનનું કારણ છે, એવી અચિંત્ય શક્તિ આત્મામાં સદા વર્તી જ રહી. શક્તિ છે એમ નથી લખ્યું. આમ શક્તિ છે, ધ્રુવ છે, શક્તિની વ્યક્તિ ક્યાં છે અમને એમ નથી લખ્યું. સદાય વર્તી જ રહી છે આત્મામાં એવી અચિંત્ય શક્તિ સદાય વર્તી. આત્માનો મહિમા જ અચિંત્ય છે ને આવા શુદ્ધ ચૈતન્ય તરંગો મારા આત્મામાં સદા ઉછળી રહ્યા છે. આવો જ્ઞાન સમુદ્ર, આવો જ્ઞાન સામ્રાજ્યમય આત્મા, સર્વજ્ઞ સ્વભાવી આત્મા, એમાં આવા અચિંત્યમયમાં મોક્ષનું નજીકમાં નજીક કારણ, આવા અચિંત્ય મહિમાની પ્રતીતિ થતા તેમાં એકાગ્રતાથી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટી જાય છે. આત્મા અનાદિ અનંત વસ્તુ છે અને ઉપયોગ તેનું લક્ષણ છે. તે પણ અનાદિ અનંત છે, જે શુદ્ધ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય છે. ઉપયોગ લક્ષણના ભેદ કરો એટલે જ્ઞાન દર્શન. જ્ઞાન કેવું લીધું એના માટે આવે. જે ઉપાધિ વિનાના સ્વરૂપ વાળું હોવાથી કેવળ એકલું નિર્ભય શુદ્ધ છે. જે આવરણ વિનાના સ્વરૂપ વાળું હોવાથી ક્રમ, ઇન્દ્રિય અને વ્યવધાન વિનાનું છે. વિઘ્ન રહિત છે, આંતરુ વિનાનું છે, પડદા વિનાનું એવું નિરાવરણ જ્ઞાન. એ નિરાવરણ જ્ઞાન વર્તી જ રહ્યું છે. અસહાય, ઇન્દ્રિય વિહીન, કેવળ, સ્વાભાવિક, સામાન્ય, જેટલા ભાવ હોય. ઉપયોગ લક્ષણ અનાદિ અનંત, પછી આવું એના અંદર જતા આવું જ્ઞાન અનાદિ અનંત, અને એવી દ્રષ્ટિ બી આવશે અનાદિ અનંત કારણ દ્રષ્ટિ. અને એક એક વસ્તુમાં નહીં વ્યાપતું હોય, સમસ્ત વસ્તુઓમાં વ્યાપતું હોવાથી અસહાય છે. તે કાર્ય સ્વભાવ જ્ઞાન. કારણ જ્ઞાન કે ત્યારે કાર્ય જ્ઞાન આપોઆપ સાથે લઈ લે એવી સંધિ છે. કાર્યથી ઉપાડ કરે તો આખું કારણ બતાવે, આખું કારણથી ઉપાડ કરે તો એવું કાર્ય આવી જ જાય. નિજ પરમાત્મામાં રહેલા સહજ દર્શન, સહજ ચારિત્ર, સહજ સુખ અને સહજ પરમ ચિત્ત શક્તિ રૂપ નિજ કારણ સમયસારના સ્વરૂપોને યુગપત જાણવાને સમર્થ હોવાથી તેવું જ છે. આમ શુદ્ધ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહ્યું. આ સહજ ચતુષ્ટય લઈને
સમયસારના સ્વરૂપો. તમારું સ્વરૂપ સમયસાર અને સમયસારના સ્વરૂપ શું એ જાણવું હોય તો જ્ઞાન. આવું જ્ઞાનની અંદર જાઓ. પાછ કથનચિત આખા શુદ્ધ અશુદ્ધ પર્યાયોના પિંડ એવા જીવ દ્રવ્યમાંથી કથનચિત કરો. એક અપેક્ષા એ શુદ્ધ ને એક અપેક્ષા અશુદ્ધ. અને કથનચિતમાંથી પાર આવો. પાર આવવા માટે શુદ્ધ નહીં કાઢો. આખા પ્રમાણમાંથી શુદ્ધ અશુદ્ધ પર્યાયનો પિંડ એ આખું પ્રમાણ. એ આખા પ્રમાણમાંથી પાર થવા શુદ્ધ નહીં કાઢો. સહજ શુદ્ધ નહીં. અને સહજ શુદ્ધ નહીં માંથી આ બે નહીં આવશે. હવે અનાદિ અનંત. અનાદિ અનંત દ્રવ્યાર્થિક ને પર્યાર્થિક. આ જ્ઞાની અજ્ઞાની વગર થઈ શકે. એટલે આ વાત લીધી. જો કથનચિત શુદ્ધ અશુદ્ધ કરશો તો એમના એમ બહાર પાણીનો સમુદ્ર હોય, તમે કિનારે ઉભા વિચારો કે આમાં જાઉં કે ન જાઉં, આમાં ડૂબું કે ન ડૂબું, જોયા જ કરો. એનો સ્પર્શ થવાનો અને અંદર કૂદી ગયા તો આખું સમજાઈ જશે. એમ कथनचित शुद्ध अशुद्ध बाहर जीव ऐसा है, जीव ऐसा है. जीव के अंदर उपयोग लक्षण द्वारा जीव के अंदर उपयोग लक्षण प्रकट है. उपयोग लक्षण शुद्ध नहीं है, अनादि अनंत है ना. और शुद्ध नहीं के विषय को भी शुद्ध नहीं कहते हैं. उपयोग लक्षण का विषय भगवान आत्मा है, या भगवान अनुभव में उसमें आ रहे हैं. दोनों में कोई विषय विषय का अंतर, ऐसा करने वाला विषय और आने वाला ऐसा नहीं है. दोनों तादात्म्य है. ऐसा तादात्म्य दर्शन. तुमको ऐसा नहीं लगे कि शुद्धोपयोग नहीं हुआ. इसके लिए उपयोग शुद्ध ही है और मेरा लक्षण. फिर उपयोग शुद्ध लगा तो ज्ञान शुद्ध ही है. जो ज्ञान मुझे वर्त रहा है, फिर ज्ञान ऐसा लगे तो दृष्टि भी शुद्ध ही है, अनादि अनंत ही है, त्रिकाली है. ऐसे करके अंदर अंदर जैसे भेदों में भी वैसे ही चले गए ना बाहर. मेरा ज्ञान अभी तो बहिर्मुख, बाहर गए भेद किया, फिर बहिर्मुख हुए तो राग, फिर राग के परिणाम, फिर उसके ऐसे फैलाव में गए ना. तो ये अंदर का भी तो फैलाव होगा. तो अंतर्गर्भित ऐसा पूरा स्वरूप शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, ऐसा पूरा प्रमाण. उस प्रमाण में अशुद्ध पर्याय के लिए अशुद्ध अंतर तत्व ज्ञान में, शुद्ध पर्यायों का स्वभाव पर्यायों का भाव भाषण के लिए शुद्ध अंतर तत्व. वो दोनों ही अनादि में, और दोनों को जानने के लिए दोनों ही नए अनादि अनंत. ऐसा स्वरूप कहना है. इसमें एक बात है, मुनिराज को मस्ती में ये पूरा स्वरूप समझने के लिए ये 5 कला ध्यान में आई है. जो 5 कला के लिए, जो समझने से कैसा स्वरूप अपने को लेना है दृष्टि में, ऐसा कैसा नया स्वरूप है, उसके लिए ये 5 भाव समझना बहुत जरूरी. पंचम भाव है ना, जीव पंचम भाव स्वरूप, तो उसके 5 भाव, पंचम भाव के 5 भाव. तो उसके लिए पहला भाव है सामान्य दल. सामान्य दળનો પહેલા ઉપયોગ સુધી. ઉપયોગ સુધી એક સામાન્ય જીવ દ્રવ્ય છે, એક સામાન્ય દળ જેમાં અનંત ત્રિકાલી વિશેષો ગર્ભિત છે. વિશેષો કહીને પણ દ્રવ્યાર્થિક નહીં જ. विशेष कह के कोई दूसरा चीज बताना ऐसा नहीं. वो सामान्य को ही बताना. उस सामान्य विशेष मिलके एक ही वस्तु है. अन्य ध्रुव, उसका भेद क्या, विशेष ध्रुव. तो 2 भाग नहीं है, एक अखंड ही है. एक अखंड को ही बताना है. ऐसा सामान्य, अनंत विशेषों वाला सामान्य. सामान्य बिना विशेष नहीं होता और विशेष बिना सामान्य. ऐसा एक साथ में. दूसरा, इस जीव में प्रथम से ही सुबुद्धियों और कुबुद्धियों को प्रथम से ही शुद्धता है,
उससे मैं कैसे किस नए से भेद जानूं? वैसी प्रागेशता का प्रभाव जिसमें चार भाव का दृश्य ही नहीं है। अपने दृष्टा का तो दृश्य है और अपने भावों का तो दृश्य है, अपनी शुद्धता का तो प्रवाह है, अत्रुटक धारा तो है, पर चार भाव नहीं है। इसलिए वो प्रकट होता है जो प्रमाण, उसका भी स्पर्श नहीं है। जे स्पर्श ही नहीं है तो પછી वो सब भाव परद्रव्य हो गए ना। प्रकट थता भाव બધા परद्रव्य, एक निरपेक्ष सहज उपादान स्वरूप, सहज शुद्ध। ऐसा प्रागेव शुद्ध से देखो, यहाँ से प्रथम से ही जिन सुबुद्धियों और कुबुद्धियों को प्रथम से ही शुद्धता, ऐसा तो आज सुना, जिसके लिए पूजित परिणति कारण शुद्ध पर्याय। और 3 नंबर में उत्पाद वैनो अभाव नहीं, न उत्पाद वैनो भेद नहीं, जैसे सिद्ध भगवान को है या एक सामान्य दल को है। द्रव्य को भी सिद्ध बोलते हैं ना, अपने से ही सिद्ध। उसे कोई सिद्ध करे, स्वयं सिद्ध, तो शिव की तरह ही हो गया ना। उत्पाद वे ध्रुव, एक अखंड पूर्ण तत्व जो आया ना अभी उपयोग लक्षण दृष्टि के विषय में, वही बात, लक्षण लक्षित तादात्म्य, ऐसा सहज तत्व, उपयोगमय जीव, बस उपयोगमय जीव। कुछ उसमें भेद निकालना नहीं, उसमें भेद निकाल के और कोई शुद्धता तुम्हें मिलेगी तो अशुद्ध ही नहीं हुआ है। प्रथम से ही शुद्धता है, तो फिर क्या प्रयोजन है उस भेदों को निकाल के? कुछ प्रयोजन बाकी ही नहीं रहा ना। पूरा दल मिल गया, पूरा द्रव्य मिल गया और पूरा द्रव्य सहज शुद्धने का विषय मिल गया, तो फिर उसमें से और भेद निकाले या भेदों का अभाव करे, तो उस वाली कला भेदों का अभाव करके एक अभाव, भेद गर्भित साथ साथ में ही है, उसका अभाव नहीं किया जाता, उसको गौण नहीं किया जाता। उपयोगमय जीव में से उपयोग को गौण करते हैं, जीव ले ले, कहाँ होता है? ऐसा होता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। इसके लिए पूरा दल, पूरा द्रव्य, पूरा सहज तत्व जो द्रव्य दृष्टि का विषय। और सर्व पर्यायोનો પ્રવાહક્રમ, ક્ષણિકનો ભેદ પડ્યા વગર सकल कर्तृत्वથી रहित एक ज्ञाता सहज अकर्ता એવા ભગવાનની સિદ્ધિ, એક ધ્રુવમાં જોવાની કળા, એક સાથે બધી પર્યાયોને નિમગ્ન જોવાની કળા, એક સરખી, એવું ને એવું દલ, सब पर्याय एक सरखी और सभी पर्याय एक साथ, सभी पर्याय एक साथ में दिख जाए तो फिर ये आई, ये नहीं आई, वो आएगी कब? वैसी पर्याय बुद्धि भी नहीं रहेगी। पर्याय बुद्धि अनंत प्रकार की होती है और अल्पज्ञाता का नाम ही पर्याय बुद्धि है, तो कोई अलग से नहीं। अभी ज्ञान में ही आपको सब दिखे तो अल्पज्ञता तो रही नहीं, और बाहर पर्याय नहीं दिखी इसलिए भी अल्पज्ञता नहीं रही। पर्याय को जानने की बुद्धि भी नहीं, पर्याय को फिराने की भी बुद्धि नहीं, कोई बुद्धि नहीं रही। इसीलिए एक साथ में, और पर्याय को देखने का तो सभी को भाव रहता है ना। सभी पर्याय, अनंत पर्यायों का पिंड है तो अनंत पर्याय की सिद्धि कैसे करेंगे? पहली और छेली ऐसा तो नहीं है द्रव्य, अनंत की सिद्धि कैसे करें? वो भी तो द्रव्य दृष्टि का विषय होगा। जितना आया है दल में उतना ही द्रव्य दृष्टि का विषय है ना। तो द्रव्य दृष्टि का विषय, विशेषण क्या है विषय का? तो एक रूप, अनादि अनंत, न उपजता न नाश होता, ये सब भाव है ना। नित्य शाश्वत, ये सभी भाव नित्य शाश्वत के, अनादि अनंत एक रूप के ही है। ये पूरा समय सार है, उसके अंग निकाल दो, जरूरत ही नहीं। ऐसा शोभित समय सार है। समय के
साथ सार लगाया ना, वैसा अकृत्रिम समय के साथ सार लगा हुआ अकृत्रिम समय से, उसमें हम समय जानते हैं, फिर सार लगाते हैं अकृत्रिम समय से। जैसे कारण शुद्ध पर्याय को देखा तो कारण के साथ, नियम के साथ सार लग गया कि एक ही कारण है मोक्ष का। ऐसे समय के साथ सार लगा के देखना, ऐसा नहीं, अंदर ऐसा समय देखा, ज्ञान को देखा, उपयोग को देखा, तो पूरा समय सार ही अकृत्रिम मिला, एक साथ अखंड परिणमता हुआ समय सार मिला। मुझे परिणमाना है ऐसा कर्तृत्व वाला नहीं मिला, अखंड परिणमता हुआ जीव द्रव्य मिला, ऐसा समय सार। और सात तत्व पर्याय में एक चेतना जनादि अनंत, उसको सात तत्व मत देखो, उसको एक चेतना देखो, क्योंकि वो एक चेतना ही है। अनादि अनंत चेतना लक्षण जो था, सात तत्व गे पड़े, अनादि अनंत गे, अनादि अनंत गे दिखा, इसलिए पारणामिक, जैसे भगवान को आता है, भगवान को सात तत्व पारणामिक हो गए, हम भी तो भगवान है ना, उस अपेक्षा से हमको भी पारणामिक दिखना चाहिए, या गे दिखना चाहिए, या भूतार्थ दिखना चाहिए, सब एकार्थ है, उसका प्रैक्टिकल एकार्थ है। कैसे भूतार्थ? सात तत्व ज्ञान के अंदर, तो ज्ञान ही परिणमता है, आत्मा ज्ञान रूपी ही सदा परिणमता है, और कोई दूसरा रूप उसका, और कोई क्रिया, और कोई परिणाम नहीं है, केवल ज्ञान रूप। ये 5 क्लास समझेंगे आप तो ही आपको ये कारण शुद्ध पर्याय वाला दल समझ में आए, इसलिए ये लिया। ऐसा ज्ञान, ऐसी दृष्टि, ऐसा उपयोग, सब अंदर का देखो, अनादि अनंत, कुछ बाहर का नहीं लिया, और कुछ बाहर का लेके अपेक्षा नहीं ली, अपना निरपेक्ष स्वभाव, और अपने निरपेक्ष में कैसे निरपेक्ष अंग है वो देखना। देखे नहीं ध्रुव है ऐसा भी नहीं, है ऐसा भी नहीं, वर्तना चाहिए उसकी। अब कैसा वर्त रहा है, अभी का अनुभव क्या है, अभी होगा द्रव्य, अभी मेरा भगवान होगा तो कैसा होगा, परिणमता हुआ भगवान कैसा होगा। इसीलिए सारी पर्याय ऐसे ली, सारी पर्यायों को खोला। एक तो उपयोग पर्याय है, उपयोग पर्याय कह के भी द्रव्य दृष्टि का विषय रहा, और ये कारण शुद्ध पर्याय कह के भी द्रव्य दृष्टि, पर्याय का विषय नहीं रहा, कोई पर्याय रही पर पर्याय का विषय नहीं। अभी पेज नंबर 62, इसमें और एक बात आई, अद्वैत सामान्य तो ससलाना सिंगड़ा जेवुं छे, જેમ સસલાને સિંગડા ન હોય ને, असत है, अद्वैत सामान्य જેમ असत હોવાથી મિથ્યા છે, અહીં તો પર્યાયને અંતર્મુખ કરીને વિશેષ સહિતના સામાન્યની કોઈ અચિંત્ય જ વાત છે। જે કાર્ય થયું તે વિશેષ છે અને તેનું જે એકરૂપ કારણ છે તે સામાન્ય છે। આ રીતે સામાન્ય અને વિશેષની એકતા रूप अनेकांतिक स्वरूप है। ये अनेकांतिक स्वाभाविक हो गया, स्वाभाविक अनेकांत किधर से निकला, स्वाभाविक ज्ञान में। अब अनेकांत है तो दो नहीं होगी, इस सारा स्वभाव और सहज दृष्टि का अद्वैत सामान्य, ये अकेला सामान्य लेना क्या, क्यों विशेष ले, उसमें आता है ना एक सामान्य, एक सामान्य, एक नहीं, पर कैसा है पहले समझो ना, फिर वो एक ही सामान्य है। तो पहले विशेष सहित का भाव में तो लेना ही पड़ेगा, अनंत विशेष और सहित जो पहली कला में है ना, उसका आधार। कभी अनंत विशेष सहित आपने ऐसा अपूर्व आत्मा, अचिंत्य आत्मा नहीं देखी,
ऐसा मोक्ष मार्ग, ऐसा विशेषणी एकता से, वो तो एकता नहीं है उधर, वो तो क्षणिक, सब क्षणिक भाव है। क्षणिक में तो क्षणिक ही मिलेगा, त्रिकाली थोड़ी मिलेगा। त्रिकाली में त्रिकाली मिलता है। ये भी आगे भी कितना सब, ये पूरी बात ही कितनी ले क्या ले। निरपेक्ष दृष्टि थी तेने ज परम पारणामिक भाव रूप सहज ज्ञान को नहीं, जे सहज कारण स्वभाव रूप ज्ञान છે તે તો ત્રિકાળ નિરુપાધિક જ છે અને તે સદાય पारणामिक भाव रूप वर्ते છે। जब ज्ञान पारणामिक भाव रूप वर्त रहा है तो उसके विषय उपाधि वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगेगा क्यों साथ तो पारणामिक लिए, तो उसका खुलासा कि ज्ञान को ही तुमने पारणामिक समझा, तो फिर ज्ञान तो बहिर्मुख हुआ ही नहीं, फिर उपाधि तो कोई लगी ही नहीं। तो उपाधि का उपचार कब लगता है कि सात तत्वों की भूल से, बस एक ही कारण, ज्ञान से भेद पड़ा तो सात तत्वों की भूल लगी, क्योंकि जीव तत्व संबंधी ही भूल आई कि आत्मा तो परिणामता था ज्ञानमय, तुमने माना बंधमय, परिणाममय, वो सारे भाव, सारे कथन, वो मूल ज्ञान से ही भेद पड़ गया। मूल ज्ञान से भेद पड़ा, मूल उपयोग से भेद पड़ा, तो मूल जीव तत्व की भूल आ गई, जीव तत्व संबंधी। फिर सारे सात तत्व स्वांग रूप दिखने लगे, सारा सब, या सारे भेद उपाधि वाले दिखने लगे, आने जाने वाले। इसीलिए निरुपाधिक ज्ञान, सहज ज्ञान, ये बेस बना लो कि सब मुझे सहज लेना है और सब अंग अंदर से लेने हैं पूरे समय सार के लिए। दृष्टि का विषय के लिए ध्रुव अंदर से और वर्तमान व्यक्त पर्याय बाहर से नहीं करना है ऐसा। इसके लिए इतना सारा लिया, इतना बेस लिया कि कोई भी प्रकार से आप भेद नहीं पाड़ो और पूरा का पूरा स्वरूप रहे और कोई भी प्रकार से आपको बाहर जाने की जगह ही नहीं मिले, द्रव्य कर्म की भूमि ही नहीं बने। और फिर द्रव्य कर्म की भूमि नहीं बने, उसका अभाव हो तो भाव कर्म का भी अभाव हो जाता है। द्रव्य कर्म के अभाव से भाव कर्म का अभाव हो जाता, करना नहीं पड़ता। इतना अद्भुत है, कितना आज तक अपना इतना वैभव नहीं लिया आपने, इतने वैभव को भोगा नहीं या यूज नहीं किया। जो समझना है अपने धन को, आज चलो वापरने निकले, इतना पैसा है, कुछ अच्छे काम में लगा, ऐसे कहते हैं ना बाहर से भी, धर्म के काम में लगा, इतना पड़ा है, क्या करेंगे, देह छूट जाएगा, ऐसा ऐसा परिणाम करते हो ना, तो यूज करते हो ना अच्छे काम में, तब आपको संतोष होता है, नहीं अभी अच्छी जगह है। ऐसे अपने अंदर निज वैभव है, उसको भी कुछ काम में लगाओ। इतने वर्तते हैं, वर्तते हुए अंग है, कार्य वाले हैं, विशेष है ना, सामान्य के साथ विशेष लिया क्योंकि कार्य भी बताना है। अकेला रख देना है सामान्य करके एक साइड में, वैसा तत्व नहीं देना है या वैसा दल नहीं देना है, सहज तत्व पूरा देना है, वर्ता हुआ देना है। अभी कि आपको ऐसा नहीं याद भी ना आए आपको कि मेरे पास कारण ज्ञान नहीं है, मेरे पास सर्वज्ञ स्वभाव वर्त रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा ना लगे आपको, सर्वज्ञ का विरह ना लगे, भगवान का विरह न लगे, निज भगवान का विरह न लगे और विरह न लगे और आप बाहर न जाए। इसके लिए सिर्फ सब अपना अंदर, कुछ बाहर नहीं, इसलिए बहिर्मुखता ही नहीं आई। अभी वो सब बातें आप लोग बहिर्मुख उपयोग टिकता नहीं है, इसलिए फिर उधर जाता है, ये सब बातों के लिए समय नहीं। उपयोग खाली उपयोग में ही रहता है, भगवान में ही रहता है, उसको समय नहीं है। व्याप्त ही है, पूरा घन ही है, चेतना द्वारा पूरा जीव को व्याप्त कर लिया है, एक एक में प्रसरा नहीं है, पूरे में। और वैसा ही ज्ञान लिया,
एक एक वस्तु में नहीं, पूरे सब ऐसा अखंड स्वपर प्रकाश। वो प्रमाण बिना, तुम्हारे पास प्रमाण ज्ञान बिना आप ज्ञान में बोलो, उसमें तो कहा नहीं ये ज्ञान नहीं है, ऐसा आएगा। और जहां आपने बोला मेरे पास सामान्य ज्ञान है, आप बोलो भगवान को जाके, चलो वो प्रमाण ज्ञान वाला ज्ञान नहीं है, पर भगवान सामान्य ज्ञान है तो हाँ है ना। तो सामान्य ज्ञान है तो ज्ञायक है, ज्ञायक है तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय हो गया, सहज शुद्ध नहीं से तुम भी सिद्ध भगवान जैसे हो गए। फिर बाहर विभव हो तो भले ना हो, बाहर ही तो नहीं है, अंदर तो है ना, बाहर ही नहीं है ना, अंदर नहीं है बोलते तो आपको चिंता लगनी चाहिए थी, पर बाहर ही नहीं है ऐसा का, बाहर की चिंता क्यों करते हो? वही बहिर्मुखता है, वही विकल्प है। निर्विकल्प के तो विकल्प होते हैं, पर विकल्प के विकल्प नहीं होते। सामान्य का तो विशेष होता है, विशेष का विशेष नहीं होता। और सामान्य का विशेष और एक साथ में कोई भेद नहीं, ऐसा पूरा अखंड। इतनी इतनी बातें दे दी, बाकी क्या है आपके पास? मोक्ष साधने के लिए बाकी क्या है? इस काल में अभी पूरा सिद्ध भगवान, इतना प्रमाण, स्वयं प्रमाण, किसके पास जाने की जरूरत? ऐसा प्रमाण अभी सर्वज्ञ हो, ठीक वर्त आगे आएगा। सर्वज्ञ स्वभाव तारो चालू ने चालू छे, गुरुदेव ने ले आया तो जी गुरुदेव ने इतना खोला। फिर ऐसी बात बंद करने के लिए कितना दुख होता है, सोचो। सबको सर्वज्ञ देखे, सबकी मुद्रा सर्वज्ञ, सिद्ध आनंद में उसमें आता है ना, अध्यात्म पीयूष में कि उसमें लिखा है ध्रुव, उसने कैसे में लिया था उस दिन गुरुदेव की कैसे कि ध्रुव आनंद चेतना ने भोगवे। ध्रुव, तुमने ध्रुव को भोगता हुआ ऐसा सुना है? ध्रुव का एक ही धर्म सुना है, ध्रुव कुटस्थ है, उतना ही सुना। ध्रुव निगोद का जीव भी आनंद को भोगता है। ये तो ऊपरी दुख है, आत्मा तो आनंद को भोगता है। आप मान्यता में दुख उत्पन्न करते हो, है तो नहीं दुख, दुख गुण कहाँ है? एक ज्ञान को छोड़ दिया ना तो सब छूट गया अपने आप। फिर दुख आ गया, फिर आकुलता आ गई, फिर ये करो वो करो, सब आ गया अपने आप। और एक आत्मा को लिया तो सब सुखमय, आनंदमय, ज्ञानमय, सब मय में ही मिलेगा। जैसे पहले ज्ञान लिया, फिर ज्ञान के अनंत गुण में जाओ, फिर अनंत गुण में जाके फिर अनंत पर्यायों में जाओ। सब ये सब तो अंदर के भेद है, अंदर जाने के भेद। तुमने तो ऐसा ही सुना होगा, पर्याय खाली भोगती है और द्रव्य भोगता है, फिर पर्याय करती है, द्रव्य करता है। यहाँ तो ऐसा सामान्य अलग और विशेष अलग ऐसा नहीं, दोनों साथ साथ एक ही समय में, एक ही समय ही नहीं है, निरंतर है, पर उसी समय में भी बोलना तो कितना सीमित है और इतना सारा कहना है। ध्रुव जितना है उतना कहना है, उसका अनंतपना कहना है। तो अनंतपने को कहने के लिए तो તેમાં उत्साह लाओ તે मोक्षનું कारण। कहाँ उत्साह लाना चाहिए? उत्साह भी लाना चाहिए तो कहाँ? ऐसे पूर्ण 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 4 बार पूर्ण, परिपूर्ण, प्रति समय, हर समय तारो स्वभाव पूरो ने पूरो। क्यारे अधूरो? हमણાં આવી ગયો, અત્યારે આવી ગયો। तो હવે અત્યારે જ્ઞાન અમને એમ નહીં બોલતા, ભેદ નહીં પાડતા। કાં તમે અત્યારે આવો પૂર્ણ લઈ શકો છો, કાં અમને અત્યારે જ્ઞાન નથી એમ લઈ શકો છો। બે વાત જ છે, ત્રીજી વાત જ, બે ધારા જ છે। પૂર્ણ લેશો તો ઓલાનું જ્ઞાન થઈ જ જવાનું છે। वो क्षणिक
वाले परिणाम का ज्ञान इसमें गर्भित ही है, वो कोई बाकी नहीं रह जाएगा, उपचरित व्यवहार नहीं में आ जाएगा, स्वभाव को जानते जानते आ जाएगा। ટીકામાં કારણ સ્વભાવ સાથે દર્શનનો ઉપયોગને બદલે કારણ દ્રષ્ટિ લીધી. કારણ દ્રષ્ટિ કહીને તેનું સ્વરૂપ શ્રદ્ધાન રૂપે તમારું રૂપ કારણ જ્ઞાન રૂપ અને સ્વરૂપ શ્રદ્ધાન રૂપ છે તમારું રૂપ. આ દ્રવ્યનું જ જ્ઞાન અને દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ, દ્રવ્યનું જ્ઞાન ને પર્યાયની દ્રષ્ટિ એમ નહીં. સામાન્ય દ્રવ્યનું જ્ઞાન, સામાન્ય દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ ને સામાન્ય દ્રવ્ય વિશેષ સહિતના કોઈ સામાન્ય દ્રવ્યની એવી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિને એવા દ્રવ્યનું જ્ઞાન, સામાન્ય સાથે વિશેષ આવી ગયું એવા દ્રવ્યનું જ્ઞાન ને એવા દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ, એવી પાવન રૂપ કારણ દ્રષ્ટિ આગળ આવશે. સદા पावन, सदा वो द्रव्य दृष्टि कहाँ पावन, अभी तो है नहीं. ज्ञानियों को ही है तो भेद पड़ गया, ज्ञानी अज्ञानी और जीव ऐसा. ये तो एकला जीव ने एकला जीव में आ બધું ગર્ભિત આવે છે. એમાં આગળ કારણ દ્રષ્ટિ તો સદા પાવન, સદા અને औदयिक आदि चार विभाव स्वभाव पर भाव ने अगोचर है, वो सहज परम्परा में चार भाव से अगोचर है. आप चार भाव वाली दृष्टि रखेंगे, माने कर्म उपाधि वाली दृष्टि रखेंगे और कहेंगे कि हमको पारणामिक भाव देखना है, अगोचर है, नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा. इसके लिए तो इतना फैलाव चाहिए. सब परम तत्व, परम अंग, परम पावन रूप, सहज तत्व, सहज दर्शन सब सहज निकालो. अंदर से सब वर्ती रहा है सहज, कुछ बाहर से नहीं लेना है और कुछ बाहर गया नहीं इसीलिए नहीं लेना है और अधूरा नहीं है इसके लिए नहीं करना है. ऐसी एक श्रद्धा बनाओ, वो भी इंद्रिय रहित है, जैसे ज्ञान इंद्रिय रहित. ज्ञान का जो विशेषण है वही दृष्टि का है. इसमें जो कारण दृष्टि कहीने तेનું સ્વરૂપ શ્રદ્ધાન રૂપે વર્ણન કરે છે. કારણ દૃષ્ટિ શુદ્ધાત્માના સ્વરૂપ શ્રદ્ધાન માત્ર છે. સ્વરૂપ શ્રદ્ધાન રૂપે આ કારણ દૃષ્ટિ ત્રિકાળ છે અને સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન સમ્યક શ્રદ્ધાનનું કારણ. सम्यक दर्शन आया वो कहाँ से है, किस कारण का वो कार्य है. तुम्हें सम्यक दर्शन तो प्रकट करना है पर स्वरूप श्रद्धान कहाँ मालूम है, कारण दृष्टि कहाँ मालूम है. कारण दृष्टि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता ऐसा. और सदा है. तुम तो आज तक बोल देते हमारे पास द्रव्य दृष्टि कहाँ है, ऐसे बोलते. आज तुम्हें मालूम पड़ गया सदा तुम्हारे पास द्रव्य दृष्टि, कारण दृष्टि, सदा पावन रूप है. आप त्रिकाल वर्त रही है द्रव्य दृष्टि. अभी यही द्रव्य दृष्टि का अवलंबन लेना कि जो सदा द्रव्य दृष्टि है वो ही मेरी दृष्टि है. जो सदा वर्त रहा है वो सर्वज्ञ ज्ञान ही मेरा ज्ञान. और दृष्टि ज्ञान दो ही तो बाजू है द्रव्य को पाने के, भगवान को पाने के, भगवान को अभेद करने के लिए. चातन भगवान की मुद्रा है, वो स्वाध्याय है. हम भगवान को यूं देखते, ऐसे नहीं देखते. भगवान की मुद्रा, भगवान की शैली कैसी है, दिव्य ध्वनि कैसी है. भगवान दिव्य ध्वनि छुट्टी है ना, सर्वस्व कहवानी पद्धति. फिर शुद्ध अलग अशुद्ध ऐसे नहीं, सर्वस्व एक साथ में कहने की पद्धति भगवान की. दो नए हैं भगवान, दो नए से निरूपण किया है. दो नए पूरा स्वरूप दो नयों में निरूपण किया है. अनादि अनंत दो नहीं, अनादि अनंत की दिव्य ध्वनि आज प्रकृति ऐसा अनादि अनंत से चल रही है. सर्वज्ञ ना नो कहेलो मार्ग, अनादि अनंत सर्वज्ञ भगवान नो कहेलो मार्ग. चिन्ह शासन और वो दोनों नहीं से वो आगे अभी ले रहे हैं.
और दोनों नए अभेद, दोनों नयों से संयुक्त, दोनों नयों से संयुक्त तुम्हारे कोई भेद नहीं, दो नए का भी भेद नहीं। पूर्ण में भेद थोड़ी होता है, पूर्ण कहने की पद्धति। ये भगवान की मुद्रा स्वाध्याय है, वहां से समझो, भगवान को सच्चा स्वाध्याय, सच्ची भक्ति, सच्चे भगवान को देखने का चक्षु कब मिलेगा? जब अपने अंतर तत्व को खोलोगे, तब दोनों का, भगवान कैसे है या जीन बिन कैसा है या नीच भगवान कैसा है, सब अंदर में है, बाहर में कुछ नहीं है। इसीलिए तो शुभ होता है। तुम कितने काल भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े रहोगे तो सम्यक दर्शन होगा, वो बताओ कितने काल? और यहाँ एक समय देखने में भी, देखते ही या वर्ता है ऐसा देखने से भी तुरंत, और वहां कितने काल खड़े रहो? गुरुदेव कहते थे ना, हजारों करोड़ों अब्जों वर्ष उभो रहे, वो तो तुम्हारे ज्ञान का ज्ञान। उसके दर्शन से, उसको देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है ही नहीं उसमें। तो अपने कारण को देखने से द्रव्य सृष्टि तो बढ़ती रही थी, इसलिए फिर काल पड़ा, पुरुषार्थ किया, योग्यता आई, सब उड़ गया, अभी हो गया उसमें देखते ही कारण से। इसलिए ऐसा ज्ञान लिया ही नहीं, ऐसी दृष्टि ली ही नहीं। हमारी तो योग्यता नहीं है, त्रिकाल वर्त रही है, योग्यता की अपेक्षा बिना त्रिकाल वर्त रही है। हमें तो एक शब्द भी नहीं आता अध्याय, जीव को कुछ समझने की जरूरत नहीं है, खाली मालूम पड़े उसका कारण वर्त रहा है। साकर के वो साकरना गांगड़ा में मिठास वर्ती रही है, मिठास नहीं कब से, जब से साकर है तब से। जीव में ज्ञान कब से, झार थी जीव, अनादि थी, और अनादि से शुद्ध, अनादि से ज्ञान, अनादि से दृष्टि में। अभी कथनचित में एक अपेक्षा ये शुद्ध की आती है और एक अपेक्षा अशुद्ध की आती है, तो हम एक अपेक्षा से शुद्धि क्यों नहीं ले? पूरे भगवान भी है वैसी एक अपेक्षा आती है ना, तो वो ही अपेक्षा क्यों नहीं ले समझने के लिए? उसकी जरूरत क्या है? इसको लेने से तो मिथ्या एकांत हो जाएगा, इसको लेने से तो सम्यक एकांत, क्योंकि विषय सहित क्या लेते हो ना, इसके वर्तता हुआ लेते हो ना, अनेकांत में एकांत लेते हो ना, तो सम्यक एकांत करने चाहते हो करना या मिथ्या एकांत करना चाहिए? अकेले अशुद्धता की बात, अकेले कर्म की बात, अकेले क्षयोपशम की बात, ऐसी एक अपेक्षा ही नहीं है, ऐसी एक धारा ही नहीं है जीव में। एक नैनो उपदेश ग्रहवा योग्य નથી એમ આવે, જીન શાસન બે નઈ અજ, बे नई माने मेरी दो आंखें, और दो आंखें प्रकृति नहीं है, अनादि अनंत है। उस कारण से उस प्रमाण में आता है, प्रकटता है। तो पहले तो यहाँ कारण, ये कारण के बिना वहां नहीं आता, और वो वहां नहीं आता, वो भी यहीं आता है, पर आपके अभ्यास वो भी यहीं से अभेद दिखता है। सब अंदर, ध्यान के अंदर, ज्ञान के आंतरिक पने, इसमें है दोनों योग, अनादि अनंत। इसमें आगे भी वो लिया है, सिद्ध सिद्ध को संसारी को संसारी गुण और सिद्ध को सिद्ध गुण। अपने जीव में तो अपने गुण, अपने परम तत्व, अपने परम गुण, वो दोनों पर्याय से अलग है। इसके आगे यही लिया ना, पूर्वोक्त पर्याय थी 6 व्यतिरिक्त जीव द्रव्यार्थी के, ने उक्त पर्याय थी 6 संयुक्त पर्याय थी।
અહીં બંને નયોનું સફલપણું કહ્યું છે. उसमें तो दो नयों का सफलपना, इसमें अनादि अनंत में दो नयों का सफलपना होता है. उपयोग में दो है ना, ज्ञान दर्शन सहज अनादि अनंत, और सहज ज्ञान में, ज्ञान के भेद में ये दो नहीं है. ज्ञान सर्व को जानता है ना, उस भाव से दो नहीं यहाँ. उसके बिना तो अभी मैं संसारी हूँ, ऐसे मैं ही संसारी हूँ बोल दोगे, और पर्यायतिक नहीं लेने से मैं तो शुद्ध हूँ, ऐसा शुद्ध और उसके भेद पड़े बिना उसका ज्ञान, जुदी पर्यायों का ज्ञान, ऐसा दर्शन होगा. इसके लिए दो नहीं, बेपर्याय से न, बेधारा से न, दो धारा है ना, दो धारा है तो दो नहीं लेनी पड़ेगी. किस नहीं से आप कि ये कर्म धारा चल रही है तो बोलना पड़ेगा ना पर्यायतिक नहीं. और उसी समय आप शुद्ध धारा भी चल रही है आप में, तो बोलना पड़ेगा द्रव्यार्थिक नहीं. अगर मैं ऐसे लूं कि अभी प्रकट हुई है नहीं या होगी, तो फिर ज्ञानी को होगी, और आप बोलेंगे कि पर्यायतिक नहीं से ऐसा हूं तो अभी तो नहीं हूं ना, या आप अभी नहीं हूं करके वर्तमान से छूटे पड़ जाओगे, तो वर्तमान तुम्हारा अलग हो जाएगा. वर्तमान खाली आपको एकांत क्षणिक उपादान दिखेगा, या वर्तमान माने एकांत अशुद्धता दिखेगी. तो अभी तो मुझे संसार है, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलने से नयों का ज्ञान होता ही है, और ज्ञान को बंद होता ही नहीं है. ज्ञान तो सबका ज्ञान करे तो बंद क्यों हो. इसलिए पर्यायतिक नहीं से, जैसे सिद्ध भगवान का दृष्टांत दिया, इसमें दिया है, आगे प्रश्न था है ना कि सिद्ध भगवान को तो फिर ये व्यंजन पर्याय नहीं सिद्ध हुई, तो भगवान को फिर दो नहीं आई. तो कहा ना, उस प्रश्न से हमने ये निकाला तो कि भगवान को भी सिद्ध होती कि भूत निगम नहीं से वो संसारी थे, पहले से ही सिद्ध तो कोई थे नहीं. तो फिर ऐसा हो जाएगा पहले से ही आप सिद्ध हो. या पर्यायतिक नहीं से तुम ऐसा करोगे कि अभी तो संसार है मुझे, अभी कहाँ, दोनों बात वैसी हो जाएगी. इसके लिए दोनों नहीं से, और नए ज्ञान में है. और ज्ञान कैसा लिया, अनादि अनंत ज्ञान लिया. अनादि अनंत ज्ञान लेके ज्ञान के सारे विषयों का ज्ञान कराना है ना, समय सार के सारे अंगों का ज्ञान कराना है ना, तो ये भी समय सार का बंध अधिकार हो गया, अशुद्ध अधिकार. वो समय सार का एक अंग है, अशुद्ध पर्याय. इसलिए अशुद्ध पर्याय ध्रुव में है. वो सिद्ध भगवान की सिद्ध की ना, बुद्ध निगम नहीं से, बाहर थोड़ी थी और बाहर थोड़ी गई. उसको बताया कैसे, उसको बताने की क्या युक्ति है, आप बताओ. दोनों नहीं से संयुक्त है, वैसा बताना हो तो कैसे बताएं. और ज्ञान में ले तो नए भेद नहीं हो, और प्रमाण से पढ़ रहे, इसलिए स्वाभाविक ज्ञान लेके ये दोनों नहीं सीखी जाती. इसमें तो नियम सार में तो सारा विषय ही अनादि अनंत है, सारा विषय ही सहज लिया, इसलिए सारी पर्याय ही स्वाभाविक ली. इसलिए आपको इसमें से ऐसी नहीं दिखेगी ही नहीं. और सहज शुद्ध नहीं का अवलंबन लिया. सहज शुद्ध नहीं से तुम ज्ञान तक के दल में आ गए ना, ज्ञान के फैलाव तक, उपयोग स्वभाव तक, और उस ज्ञान स्वभाव में दो नहीं. फिर भी हम दिखा रहे हैं आपको. एक ये बात पढ़ ले. બંને નયોના વિરોધને નષ્ટ કરનારા સાત પદથી અંકિત જીન વચનમાં જે પુરુષો રમે છે, પૂરે જીન વચનમાં એક નયમાં રમે, એક નયનો પક્ષ કેવા હશે તો પક્ષાતિક્રાંત વાળું भी नहीं, પક્ષ भी नहीं, अनादि अनंत नहीं. પક્ષાતિક્રાંત તો જ્ઞાની કરી શકે, अज्ञानी નું શું, उसे वही तो अज्ञान है कि उसके पास दो नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है. अज्ञान के भाव कितने, तेओ स्वयं मोहने वमी नाखीने अनूतन अनादि लिखा ना, देखो, અને કુનૈના પક્ષથી નહીં ખંડિત થતો. अभी कुनई का पक्ष से नहीं खंडित होती है,
जो नहीं, वो अनादि ही होगी ना दो नहीं, ये तो खंडित हो जाएगा। अभी तो पर्यार्थिक नहीं, अकेली पर्यार्थिक नहीं तो जीन शासन में है ही नहीं। एवी उत्तम परम ज्योति ने समय सारने शीघ्र देखे छे, हमणा जो वो तो बाद में आती है, उस वाली पर्यार्थिक नहीं लोगे तो बाद में दिखेगा। सर्वजीवों का सर्वजीव नहीं आते दोनों, मतलब सर्वजीवो बेनयोति संयुक्त, उसी समय दो नहीं, उसी समय दो धारा, उसी समय पूरा दल, चाहे ज्ञान हो अज्ञान हो, कौन सी भी दशा हो, वो भी बताना है ना कारण। एक साथ यही 305 प्रश्न, जो सिद्ध जीवो सदा निरंजन छे तो બધા જીવો દ્રવ્યાર્થિક તેમજ પર્યાર્થિક બંને નયથી સંયુક્ત છે, અર્થાત બધા જીવોને બંને નય લાગુ પડે છે એવો સૂત્રાર્થ ગાથાનો અર્થ વ્યર્થ ઠરે છે। શું કહે છે પ્રશ્ન સમજાણો કે નહીં? બધા જીવો, अज्ञानी को भी बे नहीं, બધા जीवों में भेद कहाँ पड़े, तो બધા नहीं आता, सर्वजीव नहीं आते। प्रमाण वाली नहीं होती तो सर्वजीव कहाँ आते? वो प्रमाण तो उल्टी छूटा पाती है, ज्ञानी और अज्ञानी, उसका ही नाम प्रमाण प्रगट। तो फिर सर्वजीव नहीं रहे, और सर्वजीव लिया तो दो नहीं संयुक्त ली, तो सर्वजीव तो अनादि अनंत ही है, तो आप ही अनादि अनंत। फिर उसमें कहते हैं तो અહીંયા પાછું પ્રશ્ન સમજાણો ને, એમ બધા જીવો બે નયોથી સહિત છે એમ તમે કહ્યું હતું ને, અહીંયા પાછું સિદ્ધને વિભાવ વ્યંજન પર્યાયોથી સહિત પરિણતિ નથી એમ કહીને તમે જ તેને કાઢી નાખો છો, તો બધા જીવો બે નહીં સહિત છે એવી તમારી વાત ક્યાં રહી? હા, વસ્તુ દ્રવ્ય તરીકે ને પર્યાયપણે બંને નયોથી બધા જીવો સહિત જ છે, અને તેથી વ્યંજન સહિત, વ્યંજન પર્યાય સહિત બધા જીવ છે એમ તમે કહ્યું હતું। જ્યારે હવે તમે એમ કહો છો કે સિદ્ધ ભગવાનને વ્યંજન પર્યાયો નથી, તો પછી તમે પહેલા જે સૂત્રનો अर्थ કર્યો હતો તે ખોટો ઠરે। લ્યો આ પ્રશ્ન અભી उत्तर देते हैं। ખોટો નથી ઠરતો, વ્યર્થ નથી ઠરતો, કારણ કે નિગમ એટલે વિકલ્પ, ये निर्विकल्प के विकल्प, विकल्प के विकल्प नहीं है। તેમાં હોય તે નૈગમ, તે નૈગમ નહીં, ત્રણ પ્રકારનું છે, ભૂત નૈગમ નહીં, વર્તમાન નૈગમ નહીં અને ભાવિ। અહીં ભૂત નૈગમ નહીંની અપેક્ષાએ ભગવંત સિદ્ધોને પણ વ્યંજન પર્યાયવાળુંપણું અને અશુદ્ધપણું સંભવે છે, કેમ કે પૂર્વકાળે તે ભગવંતો સંસારીઓ એવો વ્યવહાર છે। बहुकथनથી શું? સર્વ જીવો બે નયોના બળે શુદ્ધ તેમજ અશુદ્ધ હોય। दो धारा अनादि शुद्ध। आप लोग कैसे कर देते हो? मन द्रव्यार्थी क्यों है तो पर्याय तो नहीं कहा रहे, जहाँ ज्ञान हो वहां ही नहीं हो, अंदर ही हो ना। ये तीन काल का ज्ञान और तीन काल ज्ञान के अंदर ही होते हैं ना। पहले तो भले ना पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय भी देखी तो ज्ञान में देखी ना, पर दोनों नयों से यहाँ तो ऐसा बनानी नहीं है, दो नए से जीव संयुक्त है उतना कहना है, कुछ बनाना ही नहीं है, खाली इतना ही नहीं। उसको बढ़ाओ मत, नहीं समझ पाओगे। मुझे तो दो नए से जीव संयुक्त है इतना प्रयोजन है कि दोनों नए से अनादि अनंत सभी जीव संयुक्त है। यहाँ सर्वजीव खाली कहना है, इसलिए आप सर्वजीव में आ जाओ। सर्वजीव में आएंगे तो ज्ञान में आ गए, ज्ञान में आ गए तो दो नहीं आ गए, और दो नहीं ये भी तो साधक, अभी तो साधना है ना, दोनों सत है ना, दोनों सत को दिखाना है। उसके लिए अशुद्धता भी है, अकेली एकांत अशुद्धता नहीं है हमारे पास, उसके लिए और कारण पूरा है वो दिखाने के लिए द्रव्यार्थिक है। नहीं तो आप तो पर्यार्थिक नहीं है, पर्याय बुद्धि वाले हैं, ऐसे करके अभी कहाँ द्रव्य दृष्टि है, फिर से वहीं आ जाओगे। इसके लिए ये रहस्य ये लेना ही पड़ेगा, नहीं तो
अभी दोनों का ज्ञान यहाँ ली ना, कल दोनों धारा और बताओ, ज्ञान में ही नहीं होती है ना, और प्रगटा हुआ ज्ञान तो नहीं लेना है, ये तो आपको ख्याल में है ना। तो अनादि अनंत ज्ञान लेना है, तो अनादि अनंत दर्शन लेना है, तो फिर दोनों नहीं भी अनादि अनंत, नहीं तो फिर एक उठती है प्रगटती है ऐसा आएगा, तो वो भी द्रव्यार्थिक नहीं प्रकट हुई ऐसा आएगा, तो फिर कारण दृष्टि भी नहीं रहे कारण ज्ञान में। और प्रमाण की जरूरत भी, और कारण दृष्टि या ऐसे कारण दृष्टि भी है, ध्रुवपने है, कारण ज्ञान भी ध्रुवपने है, प्रमाण तो समर्थ तो प्रकट करना चाहिए ना, फिर ऐसे आ जाओगे। तुमको किसी बात के लिए बाहर जाने ही नहीं देना, बस ये संयुक्त रखना है, चाहे अशुद्धता में रहो चाहे शुद्धता, पर जीव में रहो, जीव में रहो, बस जड़ में नहीं, उद्गल के परिणाम में नहीं रखना है आपको, जीव के परिणाम में रहो, ऐसी पर्यार्थिक नहीं बने। और उसका देखना ऐसा फैला दो कि अशुद्ध पर्याय भी ऐसे सिद्ध हो जाए उस ज्ञान में। जैसे स्वच्छता में यहाँ डालें, दिख गया तो स्वच्छता का कितना ही स्वच्छता कि छिपा नहीं सकता, तो इस तो स्वच्छता की प्रसिद्धि सामर्थ्य हुआ ना, अशुद्धता को भी देख लिया। अशुद्धता में आवरण होता है, शुद्धता में निरावरण, ऐसे ऐसे अशुद्धता में ज्ञान कहाँ होता है, तो ज्ञान का अभाव कर दो। ये सामान्य उपयोग, हमें उसमें से सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान पूरा है, अनेकांत है सामान्य ज्ञान, इसमें से सामान्य अनेकांत निकालो, और सामान्य अनेकांत से देखो कि मैं इस विभाव पर्याय से सदा व्यतिरेक हूँ और इस स्वभाव पर्याय से सहित हूँ, ऐसे देखो, पहला ऐसा दर्शन करो, फिर इस सामान्य अनेकांत में से ये अशुद्ध धर्म भी दिखता है, इस ज्ञान में से इतना निकाला बाद, ये ज्ञान में पूरा ही पूरा विद्यमान ही है, प्रकट करना ऐसा नहीं, दो धाराएं दिखती ही है, ऐसा ज्ञान प्रमाण है, स्वाभाविक ज्ञान प्रमाण है कि सभी जीव पहले से शुद्ध नहीं है, सभी जीव पहले से अशुद्ध नहीं है, सभी जीव भेद बिना के हैं, उसके लिए तो ये दो नई इसमें आ गई। अभी इसमें बैठ के दो नयों के अवलंबन से आपने स्वरूप को साधा तो ही आपको सफल बना है, नहीं तो एक नहीं से ऐसा एक नहीं से, तो दो का साथ में है, दो संयुक्त कहाँ रहे, इससे ऊपर फिर इसको गौण करो तो ये मुख्य, फिर ऐसा हो जाएगा, या ये मुख्य करो तो ये गौण, दोनों साथ कहाँ रहे, हमें तो दोनों साथ में देखें, दोनों का सफलपना, नहीं तो एक नहीं हो जाएगा। और ये ज्ञान है सामान्य ज्ञान, इसलिए द्रव्यार्थिक वाला ही ज्ञान है, उस ज्ञान में ही ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान में ही अनादि अनंत दो नहीं, एक लिए अशुद्धता का ज्ञान तो ज्ञान नहीं, तो आप अभी अशुद्ध